ओम शांति। एकाग्र मन से, एकाग्र बुद्धि से अपने आप को यहाँ की संपूर्ण सृष्टि से समेटकर अपने सत्य, अपना सत्य चित्त आनंद स्वरूप इमुच करे बुद्धि में मैं एक चैतन्य सत्य आनंद स्वरूपा अखंड अखुट अनंत अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ। इस स्वमान में स्वयं को स्थित करें। मैं आत्मा और शरीरी, मैं आत्मा अजन्मा अभोक्ता, मैं आत्मा अविनाशी इस देह में बैठा हूँ। देह यानी ड्रामा में बैठा हूँ, देह यानी सृष्टि में बैठा हूँ। इस ड्रामा को जियदान देने वाला, इस ड्रामा को ऊर्जा देने वाला, एक एक थॉट को ऊर्जा देने वाला, एक एक कर्म को ऊर्जा देने वाला, संगम युग को ऊर्जा देने वाला, सतयुग को ऊर्जा देने वाला मैं आदिदेव, मैं मास्टर आदिदेव अपने माता पिता समान, इक्वल टू शिव बाबा, इक्वल टू ब्रह्मा माँ, और उनके कर्तव्यों में भी इक्वल टू, उनकी विशेषताओं में भी इक्वल टू, उनके गुणों में भी इक्वल टू। प्रवेश करते आज की मुरली 11 जनवरी 2025। और मुरली स्टार्ट करने से पहले आप सबको अवेयर करा दें, आप लोग के सामने एक लेटर पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या आपको ये आवाज आ रही है। आर यू एबल टू हियर दिस वॉइस? क्या आप सबको ये आवाज पहुंची है? डियर ग्लोबल फैमिली, special greetings of peace from the BK family in Southern California, USA.
Many global family members from around the world have been contacting us and asking how we are doing in face of these challenging Los Angeles wildfires. किसी को इसके बारे में पता है? न्यूज़ मालूम है आप लोग को? जी दी पता है। ओम शांति। Great. हाँ जी दीदी, मेरा बेटा कैलिफोर्निया में ही है, पर उससे अभी काफी दूर है वो आग। What started the Los Angeles wildfire where and still are the hurricane-like high winds fanning the flames around, making the flames spread all over within hours. Many districts received mandatory evacuation orders, and all Brahmins living in affected areas peacefully and willingly relocated themselves to safer places in different towns. Fortunately, the BK family is fine and the Los Angeles Center is in good condition and is very receptive to receive souls who need trusting and welcoming shelter. To several souls have arrived at Baba's home to receive protection and shelter. Many contact souls, however, have lost homes, and many who have evacuated are waiting in anticipation to see the wind calm down, the fire to be extinguished, and the roads to open for them to go and see the extent of the damage of their homes. Water for all the firefighters has run out and they have been using the city's water, and the news has been requested for all to use minimum water and also to boil the water before cooking or drinking as there is a risk of contamination. Additionally, large part of the city have lost power. There are currently 5 active fires in Southern California, and this report to our global family is also an active report. As hour by hour, the minute by minute situation change and call for new action. All the love and attention in the form of the teachings and directions that Baba has been giving us has prepared us to be attentive, focused, and be under his canopy. We remain ever ready and listen to the essence of the news, but it being the month of January, we dedicate the time to more tapasya, more sakash to the region. In the world and all those who are currently experiencing great losses of properties and belongings. Drama is showing more than rehearsal now. With Baba in mind, Gita and Southern California family. कुछ आवाज सुनाई दी? कुछ समझ आया? कुछ सुनाई दिया? कुछ समझ आया? Still sleeping. Some souls need help. और क्या समझ आया? कुछ भी नहीं? और क्या समझ आया? ओम शांति। यही समझना है कि अचानक का खेल है, तो आपको अपने योग को और बढ़ाना है और सकाश देने के लिए और बहुत मतलब मेहनत करनी है। परिवर्तन का युग है। और
दी अपनी स्थिति और सकाश पे बहुत ध्यान देना है। और जी, मुझे तो ये समझ में आया कि ड्रामा बहुत कुछ आगे जाके दिखाएगा और मुझे बस बाबा के साथ रहना है, अंडर हिज प्रोटेक्शन। और मैं वैसे रहूंगी तो फिर मैं वही वाइब्रेशन दे पाऊंगी। drama is showing more than rehearsal. अब दुनिया का कोई भी कोना नहीं जो इफेक्टेड नहीं हो रहा, पर दुख की बात ये होती कि जब तक आग अपने घर तक नहीं आती तो उसकी सेक महसूस नहीं होती। पर बाबा के बच्चों से बाबा ये उम्मीद रखता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो ना, तो तुम्हें वो सेक, वो दर्द, वो महसूस करना चाहिए। वो घबराहट, वो तकलीफ महसूस होनी चाहिए। ओम शांति। जैसे अभी आपने कहा कि जब तक अपने घर में नहीं आती है आग, तब तक फीलिंग नहीं आती है। एब्सोल्युटली राइट। अगर देखो जैसे ये लेटर आया अभी कैलिफोर्निया से, वहां से उनका सब कुछ शुरू हुआ। अभी म्यांमार में हुआ था, इससे पहले 3-4 साल से वर्ल्ड वॉर वाली स्टेज है, हर जगह वॉर चल रही है। तो वो लेटर अब आई है हमारे पास। तो कहने का मतलब यह है, ये जो सब कुछ चल रहा है, अगर बाबा के बच्चे इससे उपराम होके देखते हैं तो ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया, 3-4 साल शुरू हो गई। तो जिस जिस घर में आग लग रही है वो लोग जग रहे हैं। इट इज लाइक दैट इन द वर्ल्ड, जो मुझे समझ में आया। लेकिन अगर देखो तो ये सिनेरियो वही है कि जैसे हम रोज ही प्रैक्टिस करते हैं, उपराम होकर पूरे विश्व को अपनी शांति का दान देना, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जहां जहां आग लग रही है वहां वहां लोग जग रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। ओम शांति। और क्या लग रहा? और ओम क्या शांति लग? दीदी। अभी जैसे चेतना दीदी ने कहा ना कि विश्व के लिए अब हम सहयोगी बन के योग दे रहे हैं, तो मेरे को इसीलिए ये अब आजकल लग रहा है कि सच में वो निस्वार्थ भावना मेरे अंदर हो कि विश्व के प्रति मुझे ऐसा फील हो। अभी भी कहीं ये तो नहीं कि अभी भी मैं अपने ड्रामा को सुधारने के चक्कर में ये सब कर रही हूँ, बहुत मतलब चेकिंग। अब सच में लग रहा है नहीं बाबा आप विश्व के लिए ये भावना लेटर सुन के भी लगा है नहीं ऐसे। और क्या लग रहा? यहाँ इस वक्त 24 बच्चे जुड़े हैं, 5 बच्चों को लग रहा, बाकी कुछ नहीं लग रहा। ओम शांति। मैंने पूरा तो सुना नहीं, मैंने सिर्फ लास्ट की लाइन सुनी थी। पर मैं तो वैसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं जिस जिस घर में आग लग रही है वही सचेत रहा है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं हम लोग को ही ऐसा फील हो रहा है और हम सचेत भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं। लेकिन जो दूसरे वाले तो फिर हमें ये रहता है हर समय आपको पास यही काम रह गया शांति से, ऐसे बोलते हैं। तो कोई दूसरा बंदा तो नहीं समझ रहा ना। अब कल हम गए थे तो हमारे साथ बहुत कोई हमारा था, कोई चैप्टर चल रहा था, वहां भी जैसे हम शांत रहे, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी हमें सबने बोला कि तुम कुछ बोली नहीं, ये नहीं बोला, ये नहीं किया। दिमाग ना बड़ा अपसेट सा हो रहा अपना ही। फिर बाबा के बाबा आप तो बोलते चुप रहो, शांत रहो, सब खेल देखो साक्षी होके। मैं तो बड़ी इसमें वो हो जाती हूँ पजल सी कि भाई किधर जाओ किधर ना जाओ। ओम शांति। ओम शांति सोनिया बहन, सोनिया थोड़ा तो सा। बताओ कुछ। अभी पूरी ओम मुर्गी शांति। आएगी आपको। हाँ जी, बोलिए ममता जी। एक बात बोलनी थी सोनिया बहन कि बहुत ज्यादा सब देख रहे हैं, बाहर सब दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन एक जो भय आता है ना, कोशिश करके उस भय को आने नहीं दे। जो मेरा अपना बाबा कहता है कि भय बहुत ज्यादा अंदर ना बैठे, क्योंकि फिर आप साकाश मतलब
मुझे ऐसा लगता है फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे अपने ये एक्सपीरियंस है कि भय ना अंदर जाए, लेकिन हाँ साकाश सेवा करनी है, दया भाव रखना है, परोपकार रखना है, ये सब रखना है, लेकिन भय को अंदर नहीं जाने देना। और ओम शांति। ओम मैं शांति। ये 2 दिन से मैंने न्यूज़ देखी थी, तो मैं 2 हम्म, दिन से मतलब सकाश दे रही थी अपने अमृत वेला भी और मतलब वैसे भी जैसे दे रही थी। मतलब जब ध्यान आ रहा था ये आग दिख मतलब माइंड में आ रही तो मैं ज़रूर सकाश दे रही थी। फिर आज सुबह ही अभी की बात है थोड़ी देर पहले की, तो मेरा ब्रदर आया तो बैठा हुआ था तो कहने लगा, "ये देखा आपने लॉस एंजल्स में?" मैंने कहा, "हाँ, मैं तो बहुत सकाश दे रही, हाय अग्नि देवता शांत हो जाओ।" ऐसे मैं उससे बात कर रही थी। तो उसने मुझे एक दिखाया कि एक रील कि ये सब गवर्नमेंट करा रही है हम्म, और गवर्नमेंट ने 2028 में स्मार्ट सिटी बनाना है उस तरफ, तो वो पूरी जगह एक साथ नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट ने ये लगाई है और उसके कोई भी पेड़ नहीं जल रहे, कहीं भी आसपास कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ घर ही जल रहे हैं। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि बाबा ये गवर्नमेंट करा रही है। फिर मैंने गवर्नमेंट को भी बहुत सकाश थी, मतलब मेरे मन में ज़रा भी गवर्नमेंट के प्रति भी नहीं, तो मुझे आज अपनी चेकिंग लगी एक पॉइंट में कि ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन के हमें हर तरफ बस सकाश देना है। मुझे नहीं सुनना कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा, मुझे बस सकाश देना, गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो। तो मुझे इस समय बहुत एकदम अंदर ये लगा कि मतलब हम बच्चे कुछ तो चेंज हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बाबा से बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ भी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आया 1 मिनट के लिए, मैंने तुरंत सकाश दिया गवर्नमेंट को भी कि जो भी करा रहा है बाबा, जो कर रहा है, बस हमें सकाश देना है, ये मुझे लगा। तो ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये न्यूज़ तो हम काफी महीने से, क्योंकि भाई जी मीडिया में है, तो ये पता चल रहा है 1 साल से कि हमें नहीं मालूम पर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुकी है। तो अभी ये जब से भटियां स्टार्ट हुई हैं, तो हमेशा जब भी कुछ संगठन में डिस्कशन होती है, बाबा उससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ाता जरूर है। तो कल रात के व्यक्त मुरली में था कि उपराम स्थिति और ज्वाला रूप में स्थित होकर विश्व कल्याणकारी बनो। तो उसमें बाबा कह रहे थे कि मेरे 2 तरह के बच्चे होंगे, जो महारथी होंगे और एक घुड़सवार। परिस्थिति महारथी को पहले ही पता चल जाएगी, जैसे हम सबको पता चल गई। अब महारथी वो होगा जो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। हम्म। तो और दूसरा जो घुड़सवार होगा, परिस्थिति उसको भी कैच होगी कि आने वाली है, परंतु वो जैसे होगा ना कि घर तक सेक नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेगा, सोचेगा कर ले नहीं कर ले। तो अब समझ आ रहा था वो रात की मुरली कि वो उसका समय वेस्ट होगा, बाद में मेहनत करनी पड़ेगी उसको स्थिति मेंटेन करने के लिए। तो इतना समझ आया कि मुझे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, बस यही मेरा पार्ट है। प्रवेश करते हैं मुरली में। आज 11/1/2025 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में, कनेक्शन में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत 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 ध्यान रखना है? उत्तर में बाप दादा माता पिता याद दिलाते, गुरु शिक्षक, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाए। तुम्हें पापात्माओं से अब तुम्हें पाप आत्माओं से अब
लेन देन नहीं करनी। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें अभी पुण्य आत्मा बनना। गीत है वह ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्निवाना याद की आग। अगर अक्षर क्यों कहा है, आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है और यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा सतो प्रधान बनती आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया कि किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थी तो उनको रामराज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ही नहीं सकता। ब्राह्मण बने बगैर बाप से वर्षा मिल ही नहीं सकता। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। अगर उनमें ज्ञान होता तो मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन?
अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते, इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची होगी। पगार देते हैं बाप जो सबसे उच्च है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएंगे तो कहेगा ना, इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों का कितना अटेंशन देना चाहिए। ये पगार क्या है? जितनी बाबा को मदद मिले उतनी बाबा पगार देता है। क्या है ब्राह्मण जीवन की पगार? मम्मा पापा को देखते क्या पगार समझ में आई? सत्यों की बातें मत करिएगा। आज उनकी पगार हाईएस्ट है। कैसे मानेंगे ये बात? अभी इस सबको आत्मिक स्थिति, आत्मा का पाठ उन्होंने पक्का किया बहुत। दी मुझे दो समझ में आ रही है, धारणा और वाइब्रेशंस। अंदर से हल्कापन है और एक अजीब सी खुशी है, बिना कारण की खुशी। ये पगार बाबा द्वारा मिल रही है। जितनी पगार हाई होती है तो क्या होता है? जितनी पगार हाई होती है क्या होता है? उच्च उतना पद। परफॉर्म करने का भी मन करता है, कि जैसे हम नौकरी में भी देखते हैं कि जब हमें कोई इंक्रीमेंट मिलता है तो काम करने में और मजा आता है, और सारा अटेंशन उसमें होता है कि आई शुड परफॉर्म वेल। तो जो हमारी प्रकार इस समय मिल रही है, जैसे कि अभी हमारी जो स्थिति है, या जो हम सकाश दे रहे हैं, या जो हम काम कर रहे हैं, उसको देखकर जो अपने अंदर ट्रैंक्वालिटी है, जो पीस है, तो उसको करने का और मन करता है। मतलब जितनी हाई पगार, माने जितनी ज्यादा हमें प्राप्ति होती है, पगार मीन्स प्राप्ति, उतना ज्यादा और करने का मन करता है। ओम शांति। गुड। ओम शांति। और बताएं ओम रजनी। शांति दीदी। ओम शांति। ये प्राप्ति, अनुभव और सर्विस की खुशी है ना, हम सकाश दे रहे हैं, ये भी तो बाबा की सर्विस है। ओके, खुशी रूपी पगार। ओके, शांति रूपी पगार हुई, खुशी रूपी पगार हुई, उमंग उत्साह रूपी पगार हुई, और दीदी नशा रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, उड़ते रहते हैं दी। ओके, दीदी और जब भरपूरता कुछ और एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर और ज्यादा बाबा से हो जाता है, मतलब वो भी तो हाई नशा होता है ना एक्सपीरियंस का भी। एक्सपीरियंस का नशा हो जाता है। अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता दीदी है। जैसे कोई सर्विस करता है, उसकी इंक्रीमेंट मिले तो वो और सिंसियर हो जाता है अपनी जॉब के प्रति, उसका डिवोशन बढ़ जाता है। तो मैं होती है। आत्मा, जितना मुझे प्राप्ति अनुभव या मैं सर्विस खुशी प्राप्त होगी, मैं उतनी भरपूर और बाबा में समाई हुई होंगी। ओम शांति। एक तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और दूसरा कि अब ऐसा लगता है कि बाबा भोगनाओं से नहीं, योग से करवा जो करवाना है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी।
जब आप लोग इसी पर आंखें बंद करें और एक बार शांति से ब्रह्मा बाबा और मम्मा को की एनर्जीज को, उनका चित्र मत लाइएगा सामने। ये दो हाईएस्ट पर्सनालिटी, हाईएस्ट पगार वाली पर्सनालिटी आपके सामने है। बाबा ने कहा कि इनकी हाईएस्ट पगार है इस पर। क्या दिखती है आपको हाईएस्ट पगार? आज वो शांति। लक्ष्मी नारायण के रूप में हमें दिखते हैं। ये है हाईएस्ट पगार। नारायण मतलब क्या? उनका प्रोफाइल एक होता है ना कि हाईएस्ट पगार, मतलब उनका प्रोफाइल इतना बढ़ा दिया बाबा ने कि आज उनको जो है, उनको दिख गया पहले ही कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना कि मैं तो कल का प्रिंस बनने वाला हूँ, तो उन्होंने पहले ही इस चीज को अनुभव कर लिया था कि मैं तो प्रिंस बनूंगा। और आज वो मम्मा को भी हम लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। ये तो तो ये ये तो हुई दैहिक, ये तो हुआ फिजिकल। आज ब्राह्मण रूप में उनका हाईएस्ट पगार क्या है? आंखें बंद करके 1 मिनट साइलेंस में महसूस तो करिए। इस पल, इस क्षण, इसी पल उनका हाईएस्ट प्रोफाइल क्या दिख रहा है? सिर्फ पावर और हल्कापन। मम्मा को याद करते पावर मिलती है, और जब भी पापा को याद करते हैं तो हल्कापन आ जाता इस पल जो मुझ आत्मा को उनकी हाईएस्ट पगार महसूस होती है वो है अकाल मूर्त, टाइमलेस जोन में, आकर्षण मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय दुनिया की स्मृति, शक्ति, इस दुनिया, नीचे की दुनिया से पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था। इस पल उनकी हाईएस्ट पगार यही दिखती। कंप्लीट न्यारे और कंप्लीट प्यारे, अंश मात्र भी, संकल्प मात्र भी इस दुनिया का प्रभाव, शरीर का प्रभाव, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव रहित हाईएस्ट पगार, जीवन मुक्त अवस्था। जब उनकी पूरी जीवनी भी देखते, सुनते, पढ़ते, जानते, वो एक ही छवि सामुख एकदम इमर्ज हो जाती है। जीवन मुक्त अवस्था, संपन्न संपूर्ण ईश्वरीय संतान। ना ब्राह्मण संतान, ना देवता संतान, सिर्फ ईश्वरीय संतान। त्याग, तपस्या, सेवा, कुछ भी, कहीं भी अंश मात्र भी उन्हें कुछ छू नहीं रहा। अगर आप सब ने, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा
तो उसके आप लोग को ऑडियोज बताए गए थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके उसके तो पूरे राइटअप्स हैं अव्यक्तवाणियों में 69 की। क्लियर क्या बताया उन्होंने, उनकी संपन्न और संपूर्ण अवस्था क्या रही? नो अटैचमेंट विद दिस वर्ल्ड, विद देयर सेवा, नथिंग। मम्मा को ऑप्शन दिया गया, बहुत बच्चे बुला रहे हैं, आप वापस जाओगी? मम्मा ने कहा ना। ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी हृदय मोहिनी, इमर्ज करो इन सारी एनर्जीज को तो आपको एक कॉमन बात दिखेगी, और वो है उनकी हाईएस्ट पगार, अभोक्ता, न्यारी और प्यारी स्थिति, जीवन मुक्त अवस्था। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। मैं जितनी बाबा की मददगार बनूंगी तो उसका रिटर्न, उसका पगार है मेरी न्यारी और प्यारी अवस्था, कंटेंटेड अवस्था, संतुष्ट। बैरिस्टर पढ़ाएंगे तो कहेंगे ना इतना उच्च प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में रहना है, कर्म योग संन्यास है, कर्म में योग। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पानी का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की दो मुख्य सब्जेक्ट हैं, अल्फ और वेद। आत्मा, परमात्मा और बादशाही। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना, इसका वास करवाना है बुद्धि में। इट शुड स्टे। किसी को घर में जगह देते हो ना, बुद्धि में किसको जगह देना है? इस पॉइंट को जगह देना है कि मैं जितना जितना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, शांति धाम निवासी, शांति धाम की बिलोंगिंगनेस, शिव बाबा की बिलोंगिंगनेस, उसका एक्सपीरियंस बुद्धि में रखी रहूंगी, बसा कर रखना है उसको। मुझे वो मेरे यहाँ रहना चाहिए, मेरी बुद्धि में उसका वास होना चाहिए। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है, सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म नहीं होता। तो यहाँ अगर आपको सुख की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, संपत्ति की अनुभूति हो रही है, तो वो क्या है?
वो क्या है? हम्म? यहाँ जो आपको सुख शांति संपत्ति अच्छे संबंध अच्छी जॉब अच्छा सब कुछ अनुभव हो रहा है, देन वो क्या है? दीदी स्थूल में कि सूक्ष्म में? भूल में ऑब्वियसली। प्रारब्ध कैसे? सूक्ष्म में तो दीदी पघार है बाबा जो हमें रिटर्न दे रहा है संतुष्टता की। बाबा क्लियर 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 रोज रोज बोल रहे हैं, इस समय सब तमो प्रधान है, वो क्षणिक है, वो भ्रम है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं इस नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं, हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। यहाँ हीरा और सोना समझना है। क्या है हीरा और सोना? हीरे जैसा जो बनता वो राजा बनता, सोने जैसा जो बनता वो प्रजा बनती। हम्म। कितनी बाबा डिफरेंट लाइंस देते हैं। यस, माया का पंप शो है। हम्म। अभी जो कुछ भी दिख रहा है वो माया का पंप शो है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है किसी भी हाल में। हम्म। हीरे जैसा और सोने जैसे का अर्थ क्या हुआ? सोचा ही नहीं किसी ने मुरली पढ़ते हुए। हीरे जैसा राजा बनता और सोने जैसा प्रजा बनती, हाँ प्रजा बनती। अर्थ हम्म सोचा ही नहीं। दी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बाबा माइंड को सिंबलाइज कर रहे हैं क्या कि माइंड ही डायमंड जैसा अगर होगा तो वही आगे जाके राजा बनेगा। मतलब डायमंड जैसा मतलब क्या? दी डायमंड जैसा मीन्स कंप्लीटली रिफाइंड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड गोल्ड? दी बेसिक डिफरेंस तो ये है कि डायमंड को यू कांट ब्रेक ओके एंड गोल्ड को यू कैन मोल्ड, मतलब इन ओके एक्सट्रीम हीट यू कैन मोल्ड इट। तो मुझे ओके। ऐसा लगता है बाबा कहना चाह रहे हैं कि माइंड ऐसा हो कि किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी सिचुएशन में आप वो हिले नहीं जो हिल जाता है यूजुअली। ये समझ में आता है, ये सिंबलिज्म है। तो यहाँ जो बच्चे 29 बच्चों में से जिन बच्चों को भी थोड़ा भी मंथन का शौक हो और लगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा तो आगे बढ़ना है, किसी का पकाया हुआ नहीं खाना है, तो वो लोग आज इस पर थोड़ा मंथन करिएगा कि हीरे और सोना दोनों का पहले तो फर्क क्या है। और बाबा कह रहे जो हीरे जैसा होगा, जैसे इन्होंने अभी कहा ऋतु आत्मा ने, तो हीरा टूटता नहीं है और सोना तो मोल्ड कर सकते हैं। तो हाउ नाउ दिस एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट है हीरे और सोने का, वो हम पर कैसे लागू होता? जैसे उन्होंने कहा कि भाई हाँ, जो बच्चा जिसका मन बुद्धि जो है एकदम स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है, बार बार मोल्ड नहीं होता। हम्म
एक ये पॉइंट उन्होंने आपको समझने के लिए दे दिया कि आपको अपना मंथन किस दिशा में लेके जाना है। पर अगेन जिसको शौक हो वो करे। पर ये बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही, मैंने खुद अपने लिए नोट करके रखा हुआ है। हीरे जैसा राजा बनेगा, सोने जैसा प्रजा बनेगा। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना, इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। 2 वैरायटीज बाबा दिखा रहा है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर, ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासिया बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से कितना पेपर पेन लेके पढ़ाई करी जा रही है, कितना मन और बुद्धि मंथन कर रहा है। चलो पेन पेपर ना भी लिया, कर्म योगी कितना बच्चा है, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते, इस हालात में जो अभी हो तुम इस पल, तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है तो सब कब्र दाखिल होते हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है, तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वे तो खत्म होना ही है। फिर भी बाबा कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। सुन लिया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट रिवॉर्ड, हाईएस्ट पगार क्या है। सब रखो पर ममत्व ना हो। हिसाब किताब बाबा को दे देते हैं, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है, इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वे सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वे तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, यह बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने बिना अविनाशी बाप को याद करें। आप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है, देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी हो। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकती रहे। बाप का घर भी ऊपर है, मूल वतन सूक्ष्म वतन ये है स्थूल वतन, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है, वे है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है।
मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ आप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो, चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बाबा बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल ये भी एक निशानी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता ही नहीं। ये बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, वंडर है आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बात है। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ रहता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत जास्ती पार्ट तुम्हारा है, इसमें ही मेहनत जास्ती पार्ट तुम्हारा है। बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है, इसलिए प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज। बाप को याद करना है तो वर्षा पाना है, इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते, कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वे तो दाता है। बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात का पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना, कोई में भी मोह नहीं रखना। बाप भी स्क्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते देते। देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अब एक क्वेश्चन है ममता आत्मा और निशी आत्मा, आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले क्या? पता चला? आपके भय का आंसर मिला आपको? और हमें दुनिया क्या कहती है, उससे हमारा क्या इफेक्ट होना चाहिए, ये आंसर मिला आपको निश्चय आत्मा? जी जी। ममता आत्मा आपको मिला आंसर? भय से कैसे मुक्त होना है? हम्म? जितना जितना ड्रामा से प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ने का अर्थ होता है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। प्यार का अर्थ ही होता है अंडरस्टैंडिंग, समान बन जाना। प्यार आपको अपने समान बना लेता है। तो बाबा भी कई बार हम लोग से कहता है, अच्छा मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरे समान कितना बने हो। उसका मापदंड ही है समान बनना। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो उसके समान बनने की कोशिश, वो जैसा खाता है, वो जैसा पीता है, वो जैसा रहता है। कोई लड़का किसी लड़की से करता है तो वो भी वैसे ही करता है। अच्छा उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या, तो वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है ना। एंड फुल एक्सेप्टेंस होता है। एक तो उसके जैसा बनता है और दूसरा फुल एक्सेप्टेंस होता है, ट्रस्ट होता है, फेथ होता है। जब ट्रस्ट हो, फेथ हो, एक्सेप्टेंस हो तो भय खत्म हो जाता है। भय नहीं रह सकता। जहां एक्सेप्टेंस नहीं होती, जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहां भय होता है। पता नहीं ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरे से ही प्यार करता है कि नहीं, दूसरे को क्यों देख रहा है, दूसरे को क्यों प्यार कर रहा है, दूसरे को क्यों प्रेज कर रहा है। इट मीन्स आई एम नॉट एनफ। जब नॉट एनफ की फीलिंग होती है तो भय आता है, इनसिक्योरिटी आती है। जब पिता पर पूर्ण विश्वास हो, जब ड्रामा पर पूर्ण विश्वास हो, वो अंडरस्टैंडिंग मंथन से आती है, चर्न करने से आती है। ये ऐसे कोई तरीका नहीं है आने का, और कोई तरीका नहीं है, कोई चमत्कार बाबा नहीं करने वाला हमारे साथ। साफ साफ बोल चुका है, स्वयं पर स्वयं ही कृपा करो, स्वयं को स्वयं ही आशीर्वाद दो, स्वयं का स्वयं ही तकदीर लिखो, स्वयं को स्वयं ही तराशो, स्वयं को स्वयं ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद दिलाओ। पहले स्व और सब कुछ स्व। मैं तो सिर्फ रास्ता बताऊंगा, शक्ति दूंगा। मेरे साथ रहोगे तो मुझसे शक्ति पाते रहोगे। ऑटोमेटिकली पानी में बैठूंगी, ठंडक मिलेगी, आग में बैठूंगी, गर्मी मिलेगी, हवा में बैठूंगी, ऑक्सीजन मिलेगा। बाबा के पास बैठूंगी तो शक्ति मिलेगी, उनके जैसी शक्ति मिलेगी। देह में बैठी रहूंगी, सोने के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, माँ वाले रूप में स्पेंड करूंगी टाइम, बेटी वाले स्पेंड करूंगी, दोस्त वाली करूंगी, ये वाली करूंगी, वो वाली करूंगी, तो उसी फ्रिक्वेंसी में रहूंगी। और हमें सर्टिफिकेट किससे चाहिए? दुनिया से। सीरियसली जिन्हें पता ही नहीं चल रहा वो हमें क्या सर्टिफिकेट देंगे, हम उनको क्या समझा पाएंगे। हमारी स्थिति सेवा करें,
हमारी स्मृति सेवा करे, हमारी शांति, हमारी स्थिरता, हमारी निश्चलता, हमारी शीतलता, हमारा निर्दोष भाव, उपराम भाव, ये छोटी छोटी बातों से अबव हम जो शांति कर रहे हैं, सच में क्या ये 8-10 लोगों की शांति के लिए कर रहे हैं, या अखंड जो जोत जला रखी है 18 तारीख तक, क्या वो सच में 8-10 लोगों के लिए आपने जला रखी है? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है, अपना ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि अपने साथ देखते रहो तो बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान ही आता है कि हमने एक रोल लिया है, एक संकल्प बाबा के साथ लिया तो वो करना ही है, अंदर की स्थिति चाहे जैसी भी हो। हिलते हैं कई बार, नो डाउट, पर एक काम है वो करना ही है। ओम शांति। सर्व आत्माओं के लिए सद्भाव। ओम शांति दीदी। पर ये भी ना स्टेप बाय स्टेप ही हुआ। जैसे आप मधुबन में आपने जो साइलेंट भट्टी की थी, फिर आपने बताया कि हर समस्या का जो हल है वो साइलेंट में है, तो ये बात अंदर घुस गई। फिर लगा अच्छा साइलेंस ही हर समस्या का हल है, मतलब अंदर से साइलेंस बाबा के साथ आत्मिक स्वरूप में। तो वो करा, कुछ दिन मौन करा, तो उससे जो स्थूल समस्या है वो थोड़ा सा समझ में आया, वो थोड़ा सा सॉल्व होने लगी। तो लालच तो पहले इसी बात का ही लिया कि चलो यही ठीक है, फिर धीरे 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 अब वो समझ में आया है कि हाँ अब विश्व के लिए करना है, अब ये नहीं। ऐसा नहीं है कि दोबारा से प्रॉब्लम वो नहीं आई, वापस भी आई, सॉल्व होके फिर से भी आई। तो धीरे धीरे अब समझने लगे कि ये तो ड्रामा का नीचे का जो होना है होने दे, हमें तो बस विश्व के लिए ऊपर हमको अपने उसमें रहना है। तो पड़ाव पहले वो वाला था, फिर धीरे धीरे वो बेहद में परिवर्तित हुआ। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, काम काज करते बाप की याद में रहना। वरदान है आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भाव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्नों कितनी वैल्यू हो गई, इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन की वैल्यू को जान पाएंगे। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने के पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। उन विघ्नों के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। हमारे संगठन को तो बाबा कई सालों से ये लाइन रटा रहा है। हर एक विघ्न, हर एक जो हम लोग विघ्न, माया का वार, पेपर, ये सब शब्द कहते हैं, वो शब्द अब हमारी डिक्शनरी से फुल्ली रिजॉल्व डिलीटेड होना चाहिए, क्योंकि हर दृश्य के अंदर कल्याण छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से, सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से
विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा, मन में बैठ के वाचा मतलब मंथन करोगे, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देता रहेगा। और जितना अंदर दिखाई देगा, तब वो आप बाहर दिखा पाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। आज एक्सप्लेन नहीं करी है मुरली, सबने ऑब्जर्व किया होगा। कारण सिर्फ एक ही है कि बना बनाया भोजन बहुत सर्व हो चुका है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भोजन खुद से भी पकाएं। एक एक महावाक्य को सूक्ष्म रीति अपने जीवन में टच करके देखें कि वो क्या है, what it is trying to tell me personally। कहने को ये मंथन क्लास बनती है, पर सब लोग अपना मंथन करके आते नहीं है। पुराने आंसर्स होते हैं, सेम आंसर्स होते हैं, सेम मंथन, सेम बातें रिपीटेडली होती हैं। कोई मथता नहीं है बैठ के। आज की मुरली भी मत लो ना, कल की मुरली में आप भले अपना मंथन उस प्रेजेंट डे की, मान लो सुबह से समय नहीं मिला, बहुत नहीं मथा, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट कल की मुरली तो मत ही जा सकती है। कुछ तो नवीनता आ सकती है, कुछ तो कनेक्टिविटी आ सकती है। योग कहाँ है? मुरली के साथ योग कहाँ है? मुरली के साथ योग का अर्थ होता है कि मुरली आपके प्रैक्टिकल लाइफ में दिखे। कहाँ है वो? कहाँ है? मुरली के शब्द होते हैं, मुरली की ही बातें रिपीटेडली आंसर्स में आती। यानी बच्चे मत नहीं रहे। आप मत होगे नहीं, आपकी बुद्धि पक्की कैसे होगी? आपकी बुद्धि पक्की परिपक्व नहीं बनेगी, पारस नहीं बनेगी, तो इतना बड़ा जो सामने खड़ा हुआ है बिल्कुल आपके मुख पर, आग लगनी थोड़ी, आग लग चुकी है, कैसे हैंडल करोगे? हाउ इट विल बी हैंडल्ड? और जब अपना ही नहीं कर पाओगे तो अपने 21 कुल और 21 जन्म का क्या करोगे आप? हाउ? हद से ही बुद्धि नहीं बाहर आ रही। बहुत हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुरली लेके बैठो, सिर्फ वरदान लेके बैठ लो, सिर्फ स्लोगन लेके बैठ लो, पर उसको अपने प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट तो करो। उसका बेहद का स्वरूप तो निकालो, उसका दुआ स्वरूप तो निकालो, उसका कुछ तो निकालो, कहीं तो लेकर आओ, कर्म योग में तो लाओ। कर्म योग में ही नहीं आ रहा। इतने पॉइंट्स रास्ते में दिखे आज मुरली करते करते, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और मतते हैं, फिर लगा नहीं बस, परोस के खाना कितना दें? कन रस कितना लेंगे? थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस रस में आए ना सारे बच्चे। यहाँ से वारिस बनाने हैं, यहाँ से प्रजा बनानी है, ये भी डिसाइड कर लीजिए। आज बाबा ने बार बार वारिस और प्रजा की बात करी, कल बाबा ने पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार तो याद प्यार दे दी, तभी भी बच्चे वहीं के वहीं हैं। क्यों बाबा कह रहा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार? क्यों? राजा राजा समझा रहा, प्रजा समझा रहा, इतनी बड़ी बड़ी
चीजें हो रही हैं जिसकी बात बाबा आज से 85 इयर्स पहले कह चुका, वो अब हो रहा है, तब भी नहीं जागेंगे क्या हम लोग? तभी भी मेरा तेरा, ये फैमिली वो फैमिली, अच्छा बुरा, बस इसी में अटके रहेंगे। इससे ऊपर जाना है, इसके ऊपर की दुनिया को नहीं करना है रिवील। अपना सत्युग अपने लिए रिवील नहीं करना है। कौन अपना सत्युग रिवील करने के लिए साइलेंस पकड़ रहा है? साफ साफ बाबा लिखता है कि तुम्हें तुम्हारा सत्युग दिखेगा साइलेंस में। जब तक पानी ठहरेगा नहीं, नीचे बैठा हुआ चित्र कैसे उभरेगा? वेयर इज दैट साइलेंस? संबंधों का साइलेंस, कर्मों का साइलेंस, प्राप्तियों का साइलेंस, कहाँ है वो? क्योंकि अगर साइलेंस होगा तो मंथन निकलेगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि साइलेंस और मंथन ना हो? नहीं हो सकता। इतना पावरफुल मंत्र, इतनी पावरफुल अभी बाबा की स्थिति, जाने की बातें बाबा कर रहा है, विश्राम की बातें बाबा कर रहा है। हम फिर भी सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण की नींद में और कोई नहीं सोया हुआ है, ब्राह्मण सोए हुए हैं। घर तक आग लग गई है, ब्राह्मण सोए पड़े हैं। अपना अपनी निद्रा को थोड़ा आज कैच करिए, कहाँ कहाँ सोई पड़े हैं हम सब। सोए पड़े हैं, पर मैं आपको गारंटेड बता रही, सोए पड़े हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि नए पॉइंट्स नहीं निकलते। सबसे बड़ी निशानी, कोई नया पॉइंट। वाह वाह बहुत आता है, वाह वाह नया पॉइंट। देख लें, 18 तक तो हमारा भट्टी ही है, और ये पूरा मास माना जाता है। बाबा बहुत पावर देता है। यूं तो ये पूरा संगम युग का एक एक सेकेंड, और आज बाबा ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। तो समय तो वही है, ये तेजी फिर क्या है? समय की रफ्तार बहुत तेज है। तो तेजी क्या है यहाँ पर? समय तो वही चल रहा है, टिक 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 टिक। तो तेजी कहाँ आ गई है? और क्या हम उसको कैच कर रहे हैं? हु इज कैचिंग दैट तेजी? कौन पकड़ रहा है इस तेजी को? कोई भी नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन है। तेजी क्या है? समय की रफ्तार को कैसे आप आंक रहे हो? हम्म, आपका आपको पगार क्या मिल रही है? हम्म, सोना क्या है, हीरा क्या है? खुद को कहाँ देख पा रहे हो? और कहाँ कहाँ कुंभकर्ण की नींद में अभी भी सोए पड़े? ओम शांति। शुक्रिया बाबा।